Hello students, my name is Pradeep Patil. Today we are going to start a new poem that is The Kite. This poem is written by the poet whose name is Harry Behan. So students, every poet has the ability to describe the things beautifully. The poet uses his imagination power. Even he puts his emotions and feelings to make the things beautiful. So let us start the poem The Kite. In this poem, the poet describes the beauty of a kite which is flying in the sky. And even the poet describes the movement of a kite when it travels, when it flies in the sky. Okay, so students, let us start the poem. All of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? Read this poem about a kite as it flies in the sky. So students, in these two lines, poet is talking with us. Poet is saying everyone likes to fly kites. After that, he is asking us question. Have you ever tried to fly the kites? And then he is saying this poem is about a kite which is flying in the sky. So let us start. I will read first two lines and then I will explain. How bright on the blue is a kite when it is new. How bright on the blue. So students, here blue means what? Blue means blue sky or clear sky. Okay. So here blue means what? Blue means blue sky or clear sky. So poet is saying here how bright on the blue is a kite when it is new. So poet is saying through these two lines how the kite looks very bright and beautiful when it is on the blue sky, and even especially when it is new. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये दो लाइन से पोइट हमें बता रहा है कि काइट काइट लुक्स काइट जो रहती है वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ब्राइट लगती है. कब? व्हेन इट इज़ ऑन द ब्लू स्काई, जब वो ब्लू स्काई पे रहती है. और व्हेन जब वो बहुत नई रहती है, बहुत न्यू रहती है, दैट टाइम इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी ब्राइट. Okay, now let us read next two lines. Uh, with the dive and the dip, it snaps its tail. So, student, with the dive and the dip, these two words poet has used to show the movement of a kite through the air. Okay, डाइव एंड डिप मतलब क्या? डाइव मतलब गोता खाना और जंप लेना. ओके, और डिप मतलब झुक जाना. सो पोएट हियर ही इज डिस्क्राइबिंग द मूवमेंट ऑफ अ काइट थ्रू द एयर. ओके, सो ही इज सेइंग जब काइट हवा में रहती है, जब फ्लाई करती है, तब वो कभी जंप लेती है और कभी झुकती है. ओके, सो कभी वो गोता खाती है और कभी झुक जाती है. सो ही इज डिस्क्राइबिंग द मूवमेंट ऑफ अ काइट थ्रू द एयर. सो एंड इन नेक्स्ट लाइन ही इज सेइंग इट स्नैप्स इट्स टेल. इट snaps its tail. snap मतलब क्या? snaps means what? snaps means to मूव करना. ओके, एंड what? its tail मतलब काइट का जो टेल है. हैव यू एवर सीन द काइट? इसके पीछे एक टेल रहती है, मतलब उसकी जो पूंछ रहती है. ओके, सो हियर पोएट इज सेइंग व्हेन द काइट मूव्स थ्रू द एयर, इट मूव्स इट्स टेल. उसकी जो टेल रहती है वो उसको हिलाती है. ओके, एयर में. So in these two lines, poet is describing the movement of a kite which is flying in the air. Okay, so students, now let us start with next two lines. Then soars like a ship with only a sail. Then soars like a ship with only a sail. So students, in these two lines, poet is
he is comparing the kite with a sheep. पोएट इज कंपेयरिंग द काइट विथ द शिप. बट कौन से शिप से कंपेयर कर रहा है पोएट काइट को? पोएट इज कंपेयरिंग द काइट विथ सच अ शिप विच हैज़ अ सेल. ओके, ही इज कंपेयरिंग द काइट विथ अ शिप विच हैज़ अ सेल. जो जो शिप को सेल रहता है उससे कंपेयर कर रहा है. बिफोर दैट आई विल जस्ट टेल यू द मीनिंग ऑफ सोर. सोर मीन्स वॉट? सोर मीन्स टू फ्लाई अपवर्ड. ओके, अपवर्ड फ्लाई करना. ओके, टू फ्लाई अपवर्ड मीन्स सोर. और नाउ आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ द शिप विथ अ सेल. जो शिप को सेल रहता है मतलब व्हाट काइंड ऑफ शिप इट इज़. सो स्टूडेंट, शिप विथ सेल मतलब व्हाट? एक जो शिप रहता है, सेलिंग बोट कहते हैं उसको. ओके, सेलिंग बोट और सेलिंग शिप और सेल बोट वी कैन से. ओके, सो स्टूडेंट्स, एक शिप रहता है उसको जो एक स्ट्रक्चर रहता है लाइक अ फैब्रिक. ओके, कपड़े जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है. सो इट इज़ फिक्स टू द शिप एंड उसका जो फंक्शन क्या रहता है, वो विंड का हेल्प लेके इट टेक्स दैट स्ट्रक्चर, दैट सेल टेक्स द हेल्प ऑफ अ विंड टू मूव द शिप. ओके, मतलब विंड की सहायता से शिप आगे बढ़ता है. ओके, जो सेल रहता है इट इज़ लाइक अ विंड ऑफ अ एरोप्लेन. एरोप्लेन का जैसा विंग रहता है, विंड नहीं सॉरी, एरोप्लेन का जैसे विंग रहता है, इट लुक्स लाइक दैट. ओके, सो विंड की सहायता से शिप आगे बढ़ता है थ्रू द ओशन. ओके, इट मूव्स फॉरवर्ड with the help of a sail. So students, here poet is comparing the kite with a ship which has a sail. Okay, so he is saying then soars like a ship. मतलब शिप की जैसा वो बहुत शिप के जैसा ही काइट हवा में फ्लाई करता है. ओके, फ्लाई करता है, वो बहुत अपवर्ड चला जाता है. ओके, so next two lines. Now let us read and discuss next two lines. As over tides of wind it rides. As over tides of wind it rides. So students, what is meant by tides? Do you know the meaning of tide? Tide means waves of ocean. So here poet is saying how the ship floats on the tides. Okay, floats मतलब तरंगना. जैसे शिप जो लहरें रहती है पानी के ओशन में, उस पे जैसे शिप फ्लोट करती है वो वेव्स पे. ओके, वैसे ही अपना जो काइट रहता है, काइट राइड्स ऑन द विंड. ओके, मतलब काइट भी विंड पे राइड करती है. ओके, जब वो फ्लाई करती है तब वो विंड पे राइड करती है. ओके, राइड मतलब चलाना. फॉर एग्जांपल वी से आई एम राइडिंग अ बाइक. वैसे ही सो काइट विंड पे राइड करती है. ओके, लाइक अ शिप. जैसे शिप वेव्स पे फ्लोट करती है वैसे ही. ओके, सो नाउ स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टू लाइन्स. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट. Climbs to the crest of a gust and pulls. So students, climb everyone knows meaning of climb मतलब ऊपर चढ़ना. ओके, ऊपर चढ़ने का. ओके, that is called climb. But do you know the meaning of crest? Crest मतलब crest means the highest point of something. Okay, highest point of highest part or highest part. हाईएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पार्ट. ओके, जो एकदम ऊंचाई पे रहता है, एकदम ऊंचाई पे जो पॉइंट रहता है दैट इज कॉल्ड द क्रेस्ट. सो हियर पोएट इज सेइंग वेट सो पोएट इज सेइंग क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. सो पोइट इज सेइंग हियर काइट जो रहता है वो बहुत ऊंचाई पे, बहुत गहराई में, बहुत ऊंचे पॉइंट पे, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है. कब? व्हेन ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. गस्ट मतलब व्हाट? गस्ट मीन्स व्हाट? वी कैन से हवा का झोंका. जो जब विंड बहुत तेज रहता है, व्हेन द स्पीड ऑफ अ विंड इज़ वेरी हाई. ओके, तब उसको क्या कहते हैं?
gust, or you can say a sudden strong blast of a wind. Okay, simply you can say हवा का झोंका, और जब विंड बहुत तेज रहता है दैट इज कॉल्ड गस्ट. ओके, और पुल मतलब क्या, खींच लेना उसको नीचे, दैट इज कॉल्ड पुल. सो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. सो हियर पोएट इज सेइंग जो काइट रहता है वो बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है ऊपर. कब, जब विद द हेल्प ऑफ विंड, जब हवा के झोंके के हेल्प से, और पुल्स मतलब जो फ्लायर रहता है, जो काइट उड़ाता है, वो कभी कभी पतंग जो काइट इधर उधर चली जाती है उसको थोड़ा पुल कर लेता है, और विंड के हेल्प से वो अगेन बहुत ऊपर चली जाती है. सो ड्यू टू द गस्ट एंड पुल्स इट फ्लाइज very it flies at the top. Okay, it flies at the very highest point. So understood. So poet is saying here the kite goes at very top at the highest point with the help of gust and pulls. Now let us read and discuss these two lines. Then seems to rest as wind falls. Then seems to rest as wind falls. सो रेस्ट मतलब एकदम आराम से हो जाना, कि काम हो जाना, एकदम काम. ओके, सो कब वो आराम से हो जाती है, कब काम हो जाती है, विंड फॉल, जब विंड का जो स्पीड रहता है वो कम हो जाता है, बहुत विंड का स्पीड बहुत स्लो हो जाता है. जब विंड बहुत कम हो जाता है तब वो जो काइट रहती है वो बहुत रेस्ट हो जाती है, बहुत काम हो जाती है. ओके, सो दैट इज वाई पोएट इज सेइंग हियर देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. Now students, let us discuss next two lines. When string goes slack, you wind it back. Okay, when string goes slack, you wind it back. So when string मतलब क्या, string मतलब जो काइट का जो थ्रेड रहता है that is called string. गोज स्लैक मतलब क्या, लूज होना, टू बिकम लूज, जो ढीला होने का जो प्रोसेस रहता है उसको स्लैक में बोलते हैं. ओके, टू बिकम लूज, जो लूज होती है, जब काइट का थ्रेड बहुत लूज होता है. ओके, दैट इज कॉल्ड स्लैक. सो हियर पोएट इज सेइंग व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक. विंड मतलब क्या, रोल करना, जो फ्लायर रहता है, जो पतंग उड़ाता है वो जब थ्रेड रहता है काइट का, वो जब लूज हो जाता है तब उसको रोल बैक करता है, उसको विंड वाइंड करता है, वाइंड, नॉट विंड, वाइंड और रोल, उसको ऐसा रोल कर लेता है, दैट इज कॉल्ड द वाइंड इट बैक. ओके, दैट इज कॉल्ड वाइंड. सो हियर पोएट इज सेइंग व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, जब उसका जो थ्रेड रहता है काइट का वो जब लूज हो जाता है तब जो फ्लायर रहता है वो उसको रोल बैक कर लेता है, उसको वाइंड कर लेता है, रोल कर लेता है. ओके, नाउ लेट अस रीड नेक्स्ट टू लाइन्स. एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रिज ब्लोज. ओके, और हियर पोएट इज सेइंग, और अब जो फ्लायर रहता है उसको कब छोड़ता है, जब न्यू ब्रिज ब्लोज. ओके, ब्रिज मीन्स व्हाट, अ फ्रेश विंड. ओके, जब फ्रेश विंड ब्लो होता है दैट टाइम दैट फ्लायर अगेन मूव्स इट. ओके, अगेन वो छोड़ देता है उसको. ओके, सो ही वेट्स अंटिल द न्यू ब्रिज कम्स, अंटिल द फ्रेश विंड कम्स. Okay, so let us discuss next two lines. And its wings fill and up it goes. And its wings fill and its wings fill and up it goes. Means what? Here poet is saying जो काइट रहता है उसके पंख को बहुत हवा, एयर भर लेता है. टू फिल मीन्स भरना. ओके, सो जब विंड आता है जब उसके पंखों में बहुत सारा एयर भर लेता है, और एंड अप इट गोज मतलब बहुत ऊंचाई तक चला जाता है. सो इधर पोएट क्या ऐसा बता रहा है कि काइट को विंग्स रहता है. नो, ही इज़ नॉट सेइंग लाइक दैट. काइट को विंग नहीं रहता है, बट ही मीन्स टू से, बट पोएट वांटेड टू से हियर विंग्स मतलब जो काइट का बॉडी रहता है उसको ही विंग बता रहा है हियर पोएट. ओके, सो जो बहुत जब बहुत विंड रहता है, बहुत जब विंड ब्लोज, ओके,
तब काइट क्या करता है, हवा भर लेता है और बहुत ऊंचाई तक चला जाता है. ओके, सो इट फिल्स द एयर एंड इट गोज वेरी अप. मीन्स इट्स मीनिंग इज़ वेरी सिंपल. मतलब जब एयर रहता, जब विंड आता है तब उसकी सहायता से इट टेक्स इट्स हेल्प एंड इट गोज, इट फ्लाइज अप इन द स्काई. ओके, now let us read next two lines. How bright on the blue is the kite when it is new. Again these two lines poet is repeating. ओके, ये जो दो लाइन है वो फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने ये दो लाइन पढ़ी, वही सेम लाइन्स पोइट इज़ रिपीटिंग हियर. ओके, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट इज़ न्यू. मतलब जो काइट रहता है वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ब्राइट लगता है ऑन द ब्लू स्काई एंड स्पेशली व्हेन इट इज़ न्यू. बट हियर पोइट इज़ शोइंग सम कॉन्ट्रास्ट. but a raggeder okay, wait, but a raggeder thing you never will see. But a raggeder thing you never will see. Raggeder means what, student? Raggeder means torn or worn out. जब जो काइट रहता है वो जब फट जाता है, ओके, टॉर्न हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, रैगेटर. बट रैगेटर थिंग यू नेवर विल सी. ओके, मतलब जो फटी हुई पतंग रहती है जब वो फट जाती है वो किसी को देखने को अच्छा लगता है का. नो वन लाइक्स टू सी द काइट विच इज टॉर्न. ओके, नेक्स्ट लास्ट टू लाइन्स. when it flaps on a string in the top of a tree. when it flaps, flap मतलब क्या, फड़फड़ाती. ओके, फड़फड़ना. ओके, so when it flaps on a string in the top of a tree, मतलब जब जो काइट रहती है वो जो ट्री रहता है, ट्री के टॉप के पोर्शन में जब अटक जाती है और जब फड़फड़ाती है, ओके, इट फ्लैप्स, और जब वो फट जाती है तब नो वन लाइक्स टू सी द काइट. ओके, so students, here our poet is completed. So have you understood? I hope you all of you have understood the poem. Wait a second.